प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। सुबह के 10:30 बजे हैं, वक्त है माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट का। अपडेट आप सबको मिल गया है, एग्जामिनेशन होम सेंटर पे होने वाला है। आज के इस वीडियो में कल जो अनाउंसमेंट की गई थी उसका इलैबोरेट डिस्कशन किया जाएगा। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि जो बात उन्होंने स्टेज पे कही है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसके अलावा आज मैं ये भी अनाउंस कर देता हूँ कि अपडेट सीरीज़ लगभग अब हमारे यहाँ बंद हो जाएगा। अपडेट कभी कभी ही आएंगे। 10:30 बजे का स्लॉट जो हमारा था, अब इस 10:30 बजे वाले स्लॉट में आपके प्रिपरेशन के वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मीटिंग के सारे पहलुओं को देखते हैं जो उन्होंने बातें कही हैं और फिर उनको स्प्लिट करके मैं इलैबोरेट करता हूँ वो क्या कह रही हैं। মিটিংটা শুরু করব। তার আগে আপনারা জানেন মানসিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা টোটালটাই অনিশ্চিত একটা জীবনযাপন করছেন। তার কারণ কেউ জানে না কবে সিবিএসসি হবে, কবে টেট হবে, কবে জয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হবে, কবে স্কুল ফাইনাল হবে, কবে মাধ্যমিক হবে, এই উচ্চ মাধ্যমিক হবে, কবে সিবিএসসি হবে, আইএসসি হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা একটা আনসার্টেনটির মধ্যে মানে চলছেন। তাই ডিটেলস ব্যাপারটা বলে দেবে ব্রাত্য বোস মিনিস্টার এবং বিশেষ করে আমার মনীষ জৈন সেক্রেটারি এবং মহুয়া এবং কল্যাণবাবু আছেন যারা উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আছেন। তারা ডিটেলসটা বলে দেবেন। ডিটেলসটা আমরা বলছি না, কারণ ডিটেলসটা আমাদের কাজ নয়, ওদের কাজ। আমরা শুধু ইন প্রিন্सिपल। तो जैसा कि आप सब लोगों ने सुन लिया बच्चों कि वो कहना चाहते ही हैं कि आज वो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाली हैं हमें। लेकिन जो डिटेल्स हम लोगों को मिलने वाला है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और जो हमारे सचिव महासचिव हैं उन लोगों से हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो जिस डिपार्टमेंट से है वो डिपार्टमेंट ही आके अपना क्लियरेंस देगा। इसके बाद वो क्या कह रही हैं, चलिए आगे देखते हैं। বলছি যে আমরা চেষ্টা করছি যেটা সেটা হচ্ছে যে মাধ্যমিক আর জুলাইয়ের লাস্ট উইকে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষাটা আমরা করব। কিন্তু কোভিডের দূরত্ববিধি মেনে যার যার নিজের পাড়ার স্কুলে হোম সিট পড়বে, এগুলো আমরা ভেবেছি। তার কারণ ছাত্রছাত্রীরা যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলে সিট পড়লে তাদের পক্ষে সুবিধে হয়। বাড়ি সামনাসামনি হলো, তাহলে আর অনেক দূর বাসে উঠে যেতে হয় না এবং কি করে কম কম করে নেওয়া যায়, আরও সাবজেক্টগুলোকে আরও কমিয়ে ফেলা যায়। পরীক্ষা তো নিতে হবে, না হলে তো উচ্চ মাধ্যমিকেটা আগে দিয়েছি আমরা এই কারণে যে উচ্চ মাধ্যমিকে আপনারা জানেন যে হায়ার এডুকেশনে বিভিন্ন জায়গায় তাদের অ্যাডমিটেড হতে হয় এবং আমরা যদি আগে উচ্চ মাধ্যমিকটা না করি তাহলে তারা গ্র্যাজুয়েশনের আগে কে কোথায় কোন কোর্সে ভর্তি হবে, কি করবে না করবে, মানে কম্পিটিশনে তারা যাতে সর্বভারতীয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল কম্পিটিশন স্টেট কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের জন্য তাদেরটা জুলাইয়ের লাস্ট উইক করা হয়েছে। यहाँ आप लोगों ने साफ सुना होगा कि वो माध्यमिक के बारे में कुछ बोलने चाह रही थी लेकिन वहाँ एक ग्लिच था। लास्ट में भी एक ग्लिच आप लोगों को मिला जहाँ पर कुछ नेटवर्क एरर्स दिखे, लेकिन उन्होंने क्लियर ये बात बोली कि ये सब कुछ वो क्लास 12 के लिए बोल रही हैं कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होम सेंटर पे लिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि होम सेंटर पे रहने की वजह से, दूरी कम होने की वजह से कोविड के सारे प्रिकॉशंस को माना जाएगा और कोविड प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा। जुलाई के एंड में 12 को लेने के पीछे का रीज़न भी वो यहाँ पर क्लियर कर दे रही है कि जुलाई पहले इसीलिए लिया जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होते हैं जो कि लेने के लिए एक सर्टेन टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए पहले हम इसे एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। आगे सुनते हैं क्या उन्होंने कहा है। আর মাধ্যমিকেরটা যেহেতু এটা আমাদের ঘরের মধ্যে, তাই আমরা সেকেন্ড উইক অফ আগস্ট করেছি। আরও দু একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভাই এটা কি টানতে পারছো না ভালো করে? মাধ্যমিক মোট পরীক্ষার্থী হচ্ছে 12 লাখের কিছু বেশি, আর আবশ্যিক বিষয় আছে 7টা। যেমন মনে করবেন ভাষা 1, ভাষা 2, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জীববিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এইরকম টাইপের। মোট 7 দিন লাগবে। অতিরিক্ত বিষয় প্রায় 38 থেকে 58টা আছে। বিদ্যালয়ের যে পরীক্ষার মার্কস আছে তার ভিত্তিতে হলেই হবে এগুলো, শুধু ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট ছাড়া। বুঝতে পারছেন? নিজ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে এটা করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোকে দেখে নিয়ে সিদ্ধান্ত করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চশিক্ষা পর্ষদ।
यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया गया है ये स्पेशली माध्यमिक के कैंडिडेट्स के लिए किया गया है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझना। आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि टोटल जो सब्जेक्ट्स है जिसमें से मेजर 7 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 7 सब्जेक्ट्स को इन्होंने मेजर कहा है। यानी कि जो हम लोग समझते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो 7 सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया और बाकी 5, यानी कि मैं कहूँगा जो बच्चे हिंदी, इंग्लिश और अपने मेजर 5 सब्जेक्ट्स को, मतलब मेजर सब्जेक्ट में ऑल 7 सब्जेक्ट्स की बात की गई है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स की बात नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं अतिरिक्त, तो इन सब्जेक्ट्स में से कहा गया है कि इनका मार्क्स जो स्कूल में है उसी के बेसिस पे दे दिया जाएगा, यानी एडिशनल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन अलग से नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसे सुन के लग रहा है कि मेजर 7 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। और लास्ट में उन्होंने ये बात ऐड भी की है कि इसके बेसिस पे टोटल 12 लाख जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं, 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा, उनको जो सेंटर है उनके हिसाब से दिया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा होम सेंटर को देख के कि कौन किसके क्लोज है, ये बात भी उन्होंने कही है। और इसके बेसिस पे मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए बोला गया कि वो लोग अपने टोटल डिसीजन के साथ आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस पार्ट को प्ले कर ले और दोबारा उस पार्ट को प्ले करके एक बार देखें। और जो भी टीचर आपसे, क्योंकि मुझे कुछ कॉल्स आए थे जिसमें कह रहे थे कि सर ये सारा अनाउंसमेंट सिर्फ 12 के लिए हुआ है, 10 के लिए नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी ये अभी भी है कि जब तक हमारे पास, जैसा कि बताया गया कि एजुकेशन मिनिस्टर आके टोटल फाइनल डिसीजन बताएंगे, तो जब तक वो डिसीजन नहीं आता है एक अनसर्टेनिटी, एक कन्फ्यूज़न का जगह बना हुआ है। फिर भी इसे समझने के लिए जो उन्होंने कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले अपने डिसीजंस लेके आएंगे, और ये सारी बातों के बाद उन्होंने लास्ट में ये बात कही है, तो ये पूरा बात इन दोनों के साथ ही होल्ड कर रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ বন্টন, স্থানীয় পুলিশ থানা, যেখানে থানা দূরবর্তী সেখানে অন্য কোনো প্রশাসনিক ভবনে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কাউকে দূরে যেতে না হয়। উত্তরপত্র সংরক্ষণ এবং সংগ্রহ করা সুরক্ষিত রাখতে হবে সেই স্থানেই। এবং তাছাড়াও এটা হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। आप लोगों ने सुना, यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने साफ ये बात कही है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए पुलिस की जिस तरह से ली जाती है हेल्प ली जाएगी। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन ज़्यादा डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के केस में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया जो मुझे क्लियरली नहीं पता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बाद में उन्होंने ये बात भी ऐड की कि ये जो आंसर स्क्रिप्ट जो है, आंसर स्क्रिप्ट का कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, मतलब वो सारी चीज़ें भी इसी जगह पर की जाएंगी। तो यहाँ पर इसी जगह सुन के लग रहा है कि जिस जगह से क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी जगह पे रखा जाएगा। तो आंसर स्क्रिप्ट्स को अगर वहाँ सेंड किया जा रहा है, मे भी इसका मतलब ये निकलता है कि एग्जामिनेशन के आंसर स्क्रिप्ट जो चेक करेंगे वो स्कूल के बाहर चेक होगा। क्या होगा नहीं होगा ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बस ये बात समझ लीजिए जो इसके आउटकम निकल रहे हैं। इसके बाद वो इस पूरी चीज़ को कंक्लूड कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर नहीं ऐसा नहीं है, ये माध्यमिक के लिए अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने इसके लास्ट में भी सुना कि माध्यमिक के अनाउंसमेंट, वो कह रही हैं कि ये सब कुछ माध्यमिक के लिए है। इसके बाद भी देखिए ये पूरा चीज़ अनाउंसमेंट करेंगे और बीच में कंफर्म भी करेंगे माध्यमिक के लिए है। ध्यान से सुनिएगा। তার মানে বুঝতে পারছেন অত্যাবশ্যক পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে, কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষা যেগুলো নেওয়ার দরকার নেই সেগুলো স্কুলের পরীক্ষা সম মার্কশিট একটা মার্কস দিয়ে দেবে স্কুল, সেই নিজেদের স্কুল। আর আবশ্যিক বিষয়গুলো পরীক্ষা নেওয়া হবে। এবং এক্ষেত্রে আমরা আরেকটা ভাবছি, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দুটো ক্ষেত্রেই, তাই তো আলাপন, যে ধরুন 3 ঘন্টায় পরীক্ষা হয় অত্যাবশ্যক, যেটা 3 ঘন্টায় ধরুন সাপোজ 10টা কোয়েশ্চেন থাকলো, আমরা 3 ঘন্টার পরীক্ষাটা 1.5 ঘন্টা করে দেবো। এবং সেক্ষেত্রে যা কোয়েশ্চেন পেপার আছে তা হয়ে গেছে অলরেডি, চেঞ্জ না করে যখন 3 ঘন্টার কোয়েশ্চেন ছিল তাকে যদি 10টা উত্তর দিতে হতো, তাহলে এখানে অ্যাডভান্টেজ সে পাবে 10টার জায়গায় 5টা উত্তর দিতে হবে, 1.5 ঘন্টায় পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ তার কাছেও অনেক অপশান পেয়ে গেল। এইটা মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা পর্ষদ এটা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধে হবে, তাদের সুবিধের জন্যই, কারণ এই কঠিন। तो आप लोगों ने यहाँ पर साफ ये बात सुन ली। वो कहते हैं कि वो कुछ इस तरह से कंक्लूड कर रही हैं कि कंक्लूज़न ये है कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट पेपर्स का एग्ज़ाम होगा। और इम्पॉर्टेंट पेपर्स में उन्होंने जो पहला बात कही थी कि 7 सब्जेक्ट्स माध्यमिक के लिए हैं, उच्च माध्यमिक के लिए यानी कि हायर सेकेंडरी के लिए क्या है ये वो आगे कहने वाली है, मैं आपको वो भी सुनाने वाला हूँ, लेकिन अभी इस बात को ध्यान दीजिए। और इसके बाद वो कहती हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहती हैं कि और हम एक बात सोच रहे हैं,
जिसमें फिर वो कंफर्म करती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए, यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों के लिए। और वो ये कहती हैं कि हमारा ये सोचना है कि एग्ज़ाम जो मेजर सब्जेक्ट के होंगे उसे 50% कर दिया जाए, टाइम 50% कर दिया जाए, यानी ऑल्टरनेटिव। जो बात मैं आपसे बार बार कह रहा था कि जो एग्जामिनेशन का टोटल टेन्योर है उसको 3 घंटे की जगह में 1.5 घंटे किया गया है। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन चुका है, तो क्वेश्चन पेपर में चेंजेस ना करके उस सेम क्वेश्चन पेपर पे एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के जो चांसेस, जो जगह रहेंगे, वो आपको बस 50% अटेम्प्ट करना है। तो इससे आपके ऑल्टरनेटिव बढ़ जाएंगे और आपको मैक्सिमम मतलब आगे जाके आपको ये बात सुनने में मिलेगी। वो कहेंगे कि बहुत बार होता था कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई 8 क्वेश्चन जानता था, 2 क्वेश्चन उसका छूट जाता था, लेकिन अब क्या होगा, उसके पास ऑल्टरनेटिव इतने बढ़ गए हैं कि उसको 5 ही आता है, 5 ही इसको कॉमन मिलेगा, तो उसको स्कोरिंग बढ़ जाएगा। और वो नहीं चाहती हैं कि इस टाइम पे किसी स्टूडेंट पर और कोई संकट आए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों ने ये अनाउंसमेंट सुना, यहाँ पर उन्होंने क्लियर ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए कहा है। अगर किसी टीचर को, किसी ट्यूशन टीचर या किसी दूसरे को ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है तो उनको प्लीज़ ये क्लिप या सेंड कीजिएगा, उनको ये बात समझाइएगा। কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা চাই না তাদের মাথার উপরও কোনো বাজ ভেঙে পড়ুক বা তারা আরও বেশি চিন্তিত হোক, এটা আমরা চাই না। তারা খোলামেলা মনে রসায়ন, জীববিদ্যা, বাণিজ্য শাখা, হিসাব শাস্ত্র, অর্থনৈতিক বাণিজ্য, এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন, যেখানে যেখানে যেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে রিঅ্যাডজাস্ট দেখে নেবেন। বাট আমি চাই অল্পের মধ্যে দিয়ে হোক। আর কলা বিভাগে যেমন ইতিহাস আছে, কলা বিভাগ, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা হবে যেগুলো বললাম। আর বাদ বাকিগুলো বিদ্যালয় পরীক্ষার ভিত্তিতে মার্কস দেওয়া হবে। এটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, স্কুল ডিপার্টমেন্ট তৈরি করবে ডিটেলস। তাহলে 16 দিনের বদলে পরীক্ষাটা 8 দিনেই কমপ্লিট করা যাবে। আর 3 ঘন্টার জায়গায় 1.5 ঘন্টা করে হয়ে যাবে। তাতে 10টা অপশন থাকলে আগে 10টা লিখতে হতো, সেটা 10টা না করে 5টা করবে। তাতে সে 10টা অপশন পেয়ে গেল, আরও সুবিধে হলো। অনেক সময় আমরা দেখি কি কোয়েশ্চেন দিতে গিয়ে যে 8টা কোয়েশ্চেন কমন পেলাম, 2টো পেলাম না। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হচ্ছে সে 5টা কোয়েশ্চেনই হয়তো কমন পেয়ে গেল। সুতরাং এটা ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একটা ভালো দিক। আর বাদবাকি প্রোটোকল বা ডেট, এগুলো সমস্ত পর্ষদ এবং উচ্চশিক্ষা পর্ষদ, মাধ্যমিক পর্ষদ, কল্যাণবাবু আছেন উচ্চশিক্ষা পর্ষদের, মহুয়া আছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, এটা বাদবাকি ডিটেলসটা আপনাদের দিয়ে দেবে। ভুল করবেন না, গুলিয়ে ফেলবেন না দয়া করে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে লাস্ট উইক অফ জুলাই, আর ওটা আগে হচ্ছে, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল কম্পিটিশনের ব্যাপার আছে, ভর্তি হওয়ার ব্যাপার আছে। মাধ্যমিকটা ঘরে, তাই এটা আগস্টের 2nd উইক, ঠিক আছে? অত্যাবশ্যক সাবজেক্ট ছাড়া পরীক্ষা আমরা করছি না, সেগুলো স্কুলের মার্কসের ওপরে ভিত্তি করে দিয়ে দেবে নাম্বার। আর 2 হচ্ছে 3 ঘন্টার জায়গায় 1.5 ঘন্টা পরীক্ষা হবে। অপশান কোয়েশ্চেনে 10টাই থাকবে, মানে 10টা 12টা যা থাকে পুরোটাই থাকবে কোয়েশ্চেন, তার মধ্যে সে হাফ অফ দ্য কোয়েশ্চেন পরীক্ষা দেবে। সুতরাং এটা হয়ে গেল। আমরাই প্রথম মনে হয় ভারতবর্ষে পরীক্ষার ডেট ডিক্লেয়ার করলাম, এবং আমি নিশ্চয়ই বলবো যে একটু স্যানিটাইজেশন মেনটেন করে, সোশ্যালি ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করে যাতে হয়। তাহলে কী হবে, একটা দিন এতগুলো পরীক্ষা তো হচ্ছে না অত্যাবশ্যক, সুতরাং সুবিধা হবে। আপনারা ভাগ করে 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 পরীক্ষা ক্লাসগুলো দিয়ে এগুলো নিজেরা করবেন, এগুলো একটু দেখে নেবেন। থ্যাংক ইউ মনীষ, বুঝতে পেরেছো মোটামুটি? আচ্ছা, বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই তো? আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা যেটা বললাম? তারপরে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকে ওটা আলাপনের সাথে আলোচনা করে নেবেন, কারণ হি নোজ দিস ডিটেल्स। आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर और ध्यान से सुना होगा, पूरी बात आपको साफ समझ में भी आ रही होगी। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको किसी प्रॉब्लम में पड़े। इसके बाद यहाँ एक ग्लिच आती है छोटी से, जिस ग्लिच के बाद वहाँ वो बताते हुए सुनाई जा रही हैं कि उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये ग्लिच की वजह से हमें बस कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में पता चला। जो वो कॉलम भी बोल रही हैं, वो कॉलम मतलब होता है हमारा ये आर्ट्स के ग्रुप, और जो वो जीव विज्ञान और कुछ स्ट्रीम के बारे में बता रही थी जो कि कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो वो कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बता रही है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। वो बाद में कंफर्म भी करती हैं कि जितना वो उन्होंने बताया उन सब का एग्ज़ाम होने वाला है, यही मेजर सब्जेक्ट्स में आएंगे। लेकिन इसके लिए फिर भी वेट कीजिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट करेगा उसके बाद हम लोग जान जाएंगे कौन कौन सा है। स्पेशली मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से और मुझे साइंस के सब्जेक्ट्स को जानना था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
अपार्ट फ्रॉम दिस तो ये तो 12 के लिए अनाउंसमेंट ये मैक्सिमम पार्ट था, और ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई। और साथ ही साथ वो ये भी क्लियर बताते हुए सुननी जा रही हैं कि जो भी ये बाकी जो फाइनल डिसीजंस जो आने हैं, जो करने हैं, वो सब कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट जो है, जो एजुकेशनल मिनिस्टर है, वो लोग बाकी सारी चीज़ें हमें कंफर्म करते हुए सुनाई पड़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बात भी कही थी कि हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो ये बात से भी हमारे कंसर्न है कि इस टाइम पे बच्चों को कोई दूसरी परेशानी ना हो। तो इस वजह से उन्होंने ये बात भी कही है कि आप देख सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने ये बात कही कि जहाँ पर 10 ऑप्शंस होते थे, अगर 10 में से आपको 8 आता था, 2 आपका छूट जा रहा था, तो अब आपके पास ऑप्शंस कम हो गए हैं और 5 हो गए। और इस चीज़ को उन्होंने पूरा कंक्लूड भी किया कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें कुछ गलतियाँ ना हो। आई होप कि मैं सारी चीज़ें जिस तरह से आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ट्रांसलेटेड वर्जन है ये, और वही चीज़ें हैं जो उन्होंने कही है, उसके बाद मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ उनको ये रेफरेंस प्रोवाइड कीजिए और उनसे कहिए। अगर किसी बच्चे को समझने में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा कि हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं इसके लिए इलैबोरेट डिस्कशन आने पे, मतलब इलैबोरेट पॉइंट्स आने पे, पूरी रिटन नोटिस आने पे, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। अब चलिए, हम लोग इतना कुछ जान चुके हैं, तो अब हम थोड़ी सी उनके मीटिंग को, लास्ट के पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें समझते हैं। अपन कागजটা রেখে দাও, এটা ব্যাংকে জমা রেখে দাও। থ্যাংক ইউ কল্যাণবাবু, মহুয়া এবং মনীষকে আগে ছেড়ে দিলাম। তোমাদের তো ডিজাস্টারের কাজে দেখতে হচ্ছে, কোভিড দেখে নিও। থ্যাংক ইউ। আর বাত্তকে ডাকলাম না, তার কারণ হচ্ছে ওর কোভিড হয়েছিল, আবার এখন কি বেরোতে পেরেছে না, কিন্তু কোভিড ভালো হয়ে যাবার, নেগেটিভ হবার পরেও 17 দিন বেরোনো উচিত নয়, দেখে নাও। এবার আলাপন ডিজাস্টারের মিটিং চিফ সেক্রেটারি শুরু করবেন। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, वो यहाँ पर मीटिंग को एंड कर रही हैं और कह रही हैं कि डिजास्टर की मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो हमारे कल्याण बाबू थे, मतलब जो हमारे सेक्रेटरी थे, इससे महुआ दास, उन सबको उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, मीटिंग को लीव कर सकते हैं। उन लोगों को पहले छोड़ दिया गया क्योंकि वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ जाना है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है बहुतो बसु, वो क्यों इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनको रिसेंटली कोविड हुआ था, तो कोविड के बाद नेगेटिव होने के बाद 17 डेज तक उनको रहना चाहिए, इसी वजह से उनको यहाँ नहीं बुलाया गया है। तो ये सारी क्लियरेंस आ गई। अब चलिए बच्चों, मैं आपसे एक फाइनल बात पे, एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेता हूँ। वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होने वाला है कि ये एग्ज़ाम जो सडनली अनाउंस कर दिया गया, तो क्या ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ हुई है या पॉजिटिव चीज़ हुई है। तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम लोग पिछले 1.5 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारा कंसर्न था कि हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारा हेल्थ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्योंकि 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 2 महीने बाद की बात आप कैसे अभी से कह सकते हो, ये बात आपको सोचना चाहिए। मे भी 2 महीने के अंदर में, 2-2.5 महीने का जो हमारे पास टाइम है, उसके बीच में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो जाएं। आप लोगों ने लास्ट ईयर भी नोटिस किया कि हमारे पास स्कूल खोलने का सिचुएशन आया था, 2-2.5 महीने तक स्कूल लगातार चली थी। उस टाइम पे क्यों चल पाई थी? क्योंकि कोविड का सिचुएशन बहुत सुधरा था। अगर दोबारा वैसा सिचुएशन आएगा तो क्यों एग्ज़ाम नहीं देंगे हम, आप ही बताइए सोच के। तो हम लोगों को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि 2 महीने बाद के बारे में अभी से सोच के डरने से बेहतर है कि हम अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी वो कंटिन्यू करें। देखिए, 2 महीने बाद क्या होगा, अगर 2 महीने बाद भी ऐसे ही हमारे पास हालात होते हैं जहाँ पर सब कुछ नेगेटिव होता है और हम लोगों को एग्ज़ाम देने के लिए फोर्स किया जाएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए स्टैंड लूँगा और मैं फिर आप लोगों के लिए फाइट करूँगा। मैं फिर कहूँगा कि नहीं, इस कंडीशन में एग्ज़ाम हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 2.5 महीने का टाइम है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड है कि एकेडमिक सेशन का क्या होगा। ये क्वेश्चन सभी के, एकेडमिक सेशन का क्या होगा, हम कब 11 पढ़ेंगे, और ये अनसर्टेन क्वेश्चंस को अगर वो इस टाइम पे आंसर नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ओके, जो हमारा सेशन आगे वो एक्सटेंड कर रहे हैं उसे वही लोग मेकअप करके हमें देंगे। मतलब हमारे लिए ऐसा कोई सेशन जरूर रहेगा जिसमें हमारे पास ये एक्सटेंडेड टाइम ऑलवेज हम लोगों को मिलता रहे। मे बी ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। जो भी हो, अभी तो जो हमारे पास है, हम लोग अगर अभी की तरफ से सोचे, जो बच्चे इतने मेहनत करके पढ़ रहे थे, आप लोग इतनी मेहनत करके आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, और यहाँ से आप लोगों को 2.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग अपने रिवीजन कर लो और रिवीजन करके एग्ज़ाम देना। 2.5 महीने बाद मे बी कोविड सिचुएशन सुधर जाए, जिस तरह से पिछले साल सुधर था, हम लोग स्कूल जाने लगे थे, हम सब लोग स्कूल जा रहे थे ना। कोविड को ऐसा लग रहा था जैसे कोविड खत्म हो गया है।
थर्ड वेव आने की बात है, आने की बात है, आई नहीं है, इसीलिए अभी से उसको लेके टेंशन ना ले। जब वो वक्त आएगा तब अगर दोबारा ऐसे हालात हुए तो हम फिर इस बारे में सोचेंगे। तो आप लोग अपना मेंटल सेटअप ठीक करो, आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ दोबारा बढ़ो। हमारे पास जो अनसर्टेनिटी थी वो हटा दी गई है दिमाग से। अनसर्टेनिटी थी कि एग्ज़ाम आपको देना है, एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, अब क्लियर हो गया है, हाँ एग्ज़ाम देना है। कब देना है? अगस्त में देना है, 2.5 महीने, अभी नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। अभी इस सिचुएशन में बोला जाता मैं अभी आप लोगों के लिए फाइट करता, नहीं इस सिचुएशन में हम ऑफलाइन एग्जाम में नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो कह नहीं रहे। जुलाई के एंड में और अगस्त के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ों के बाद आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ा तो पॉजिटिव फील हो रहा होगा। मैं बहुत काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ कि हाँ चलो इतना कुछ हुआ है। जो बच्चे मेरे इतनी मेहनत करके तैयारी किए थे, जिन्होंने इतना सब कुछ किया था कि वो अब अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अब तो वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे कि हाँ चलो मेरा एग्ज़ाम अब होगा, मैंने इतनी सारी तैयारियाँ की है, अब मैं खुद को परफॉर्म करके भी दिखाऊँगा। परफॉर्म तो करके दिखाएंगे, यहाँ पर तो भी कुछ डाउट्स रहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि इतनी सारी चेंजेस आ रहे हैं, स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है तो कोई स्कूल अच्छे से एग्ज़ाम लेगा नहीं लेगा, लेकिन कम से कम आपको अपना एग्ज़ाम देने का मौका तो मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा पॉजिटिव फील करो। और अभी बस एक बात पे ध्यान रखो, आने वाले 2.5 महीने के बाद, 2.5 महीने में जब कुछ होगा तब हम लोग दोबारा फाइट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अनसर्टेनिटी हमारी ख़त्म हो गई है। जिस चीज़ को से इरिटेशन हो रहा था, हर सुबह उठ के आप एक अपडेट देखना चाहते थे, हर दिन मैं बैठ के हर एक वक्त अपडेट चेक कर रहा था कि क्या अपडेट होगा, क्या अपडेट आने वाला है, क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं। कम से कम वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, वो इरिटेशन का रीज़न खत्म हो गया। अब एक पॉजिटिविटी फील आ रही है कि चलो एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे अब तैयारी करनी है। आपकी इस तैयारी में मैं अपनी एंड से जितनी मदद कर सकता हूँ पूरा करूँगा। 10:30 वाला जो स्लॉट है जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए अपडेट्स ला रहे थे, इस स्लॉट में अब अपडेट की जगह पर आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगे। आज के बाद नेक्स्ट वीडियो, अपडेट का वीडियो फिर कब आएगा, ये इसी टाइम पे 10:30 वाले में ही आएगा। अदरवाइज 2 वीडियोस यानी कि 9:30 और 10:30 दोनों में ही आप लोगों के लिए, दोनों ही वीडियोस जो आप लोगों के पढ़ाई के स्टडी के आने वाले हैं। तो डेली मैं आप लोगों को 2 वीडियोस के साथ अपडेट करूंगा, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा सकता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं करा सकता हूँ। सारे बच्चे प्लीज़ आप लोग अपने लिए पॉजिटिव फील करें, आप लोग अनसर्टेनिटी को भूल जाए और आने वाले नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें और अपने लिए तैयारी स्टार्ट करें। मन में जो भी बुरी बातें थी, जो भी बुरी चीज़ें चल रही थी और जो भी अभी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको भूल जाए और इसके लिए तैयारी करें। आई होप कि आज का दिन मुझे बहुत दिन बाद आज बहुत ही सुकून भरा दिन मिला है, जिसमें मुझे सारी चीज़ें मेरे बच्चों के हिसाब से लग रही थी। जिन बच्चों को मैंने तैयार किया है, मुझे लगता है उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। वो बहुत खुश होंगे इस चीज़ के साथ और वो बहुत मतलब जो परफॉर्म करने के लिए खुद को रेडी करके रखे हुए थे, वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे कि चलो हाँ हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी, अब हम लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन 2 महीने बाद की सिचुएशन में कोविड आएगा, 2 महीने बाद थर्ड वेव आएगा, हमारा सेशन क्या होगा, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को अगर अभी भी आप अपने अंदर रखोगे तो आप परेशान होगे, तंग हो जाओगे। प्लीज़ मत रखो। जहाँ तक बात है कि 2 महीने बाद क्या होगा, अगर सिचुएशन ऐसे हुए तो क्या हम फाइट नहीं करेंगे? हम बिल्कुल फाइट करेंगे, तब देखा जाएगा। प्लीज़ अभी ये सब मत सोचो। अभी आप लोगों के पास 2.5 महीने का टाइम है, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो, सीखो। एंड आई होप कि अब तक आप लोगों ने कर लिया है तो फिर अच्छे से रिविज़न करो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतनी ही बातें रहेंगी। इसके साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक करें। कमेंट करके बता दें क्यों आपने इस वीडियो को डिसलाइक किया है, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। मे बी अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो तो मैं उसे करेक्शन कर पाऊँ। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और सबसे ज़रूरी अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अभी भी दुश्चिंता में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है और इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के बीच में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।